Hello everyone. Today we are going to discuss another topic of reasoning. The name of topic is syllogism, जिसका हिंदी में मतलब होता है तर्क वितर्क. Syllogism is a Greek word which means inference or deduction. It is form of arguing in which two statements are used to prove that a third statement is true. For example, all humans are mortal. I am a human. Therefore, I am mortal. हिंदी में बोलेंगे एक प्रकार का तर्क वितर्क जिसमें दो कथनों का प्रयोग तीसरे कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है. सेलोजिज्म में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन का मतलब होता है एन आइडिया, जिससे हमें पता चलता है कि हमें सेलोजिज्म को सॉल्व कैसे करना है. प्रोपोजिशन में तीन पार्ट डिवाइड होते हैं प्रोपोजिशन का. फर्स्ट वन सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट्स एंड थर्ड कोपुला. सब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट is that part of proposition about which something is said, and predicates represented by P, which means a predicate is that part of proposition which is affirmed or denied about the subject. Copula represented by C. A copula is that part of proposition which says about the relation between the subject and the predicates. For example, baby is naughty. Here information is given about baby, so baby is the subject. Naughty is the quality affirmed for the subject, so it is the predicates. Is show the relation between the subject and the predicate, so it is the copula. Now another word is term. What does term means? Term is defined as a word or a set of words which by itself can be used as a subject or predicate of a proposition. Syllogism contains following three terms. That is major, minor and middle. Major term, it is used in the form of predicates represented by P, and minor term, it is the subject of the conclusion and is denoted by S for subject. And third, middle term, it is the term common to both the statement is denied by M for middle. The middle term should not appear in the conclusion. For example, all ships are bus, all car are ship. Conclusion, all car are buses. Here buses is the predicates of the conclusion, therefore it is major term P, car is the subject of the conclusion. Therefore it is the minor term S, ship is the term common to you both the statement, therefore it is the middle term. Now we are going to discuss classification of propositions. Propositions have been classified on the basis of quality and quantity of the proposition. Quality denotes whether the proposition is affirmative or negative in nature. Quantity denotes whether the proposition is universal or particular. The fourfold position can be summarized as. Symbol है यहाँ पे A, E, I, O. और proposition है इसमें जैसे A, all A R B. All A R B. इसकी क्वांटिटी है यूनिवर्सल. ई में नो ए इज बी, ये भी यूनिवर्सल है. क्वांटिटी इसकी यूनिवर्सल है, बट क्वालिटी की बात करें तो नेगेटिव है. और ये ऊपर वाली क्या है, अफर्मेटिव क्वालिटी. थर्ड वन आई, सम ए आर बी, पर्टिकुलर क्वांटिटी है और क्वालिटी है इसकी अफर्मेटिव. फोर्थ ओ, सम ए आर नॉट बी, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है और क्वालिटी इसकी नेगेटिव है. अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. अब ए, ऑल एस आर पी, जो चीज़ हमारे पास ऑल एस आर पी, जैसे एक बड़ा सा सर्कल बनाया पी, इसके अंदर एस डाल दिया, यहाँ पे पूरा एस क्या डिनोट कर रहा है, पी को. दूसरा ई, नो एस आर पी, तो यहाँ पे हमने एक एस बना दिया, साथ में हमने पी बना दिया, बट ये अटैच नहीं है तो नो एस आर पी. थर्ड वन सम एस आर पी, सम के लिए हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे इसका बीच का, जैसे सम एस आर पी, और यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी ठीक रहेगी सम एस आर पी, और ये भी रहेगा कि सम एस आर नॉट पी.
दो स्टेटमेंट दोनों ठीक रहेगी। जब हम एक डायग्राम को देखते हैं ऑल SRP, तो इसमें ऑल SRP करेक्ट है, और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये भी बन सकती है सम PRS, दोनों करेक्ट होंगी। नेक्स्ट हम अब इसे क्वेश्चन से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे स्टेटमेंट दी होगी आपके पास ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल इज कैप, एक कंक्लूजन दिया होगा, इसमें से आपको एक ट्रू वाला टिक करना होगा। जैसे कंक्लूजन 1 में ऑल कैप्स आर पेंसिल, सेकंड में सम कैप्स आर पेंसिल। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले स्टेटमेंट देखनी है ऑल पेन आर पेंसिल। जब ऑल की बात होगी तो ऑल पेन, जो जितने भी पेन हैं वो क्या है, पेंसिल, उसके बाहर एक सर्कल लगाएंगे पेंसिल। ये वाला लिख दिया नो पेंसिल इज कैप, मीन्स नो पेंसिल इज कैप, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये साइड में बना दिया हमने अलग। अब कंक्लूजन में क्या देखेंगे, ऑल कैप्स आर पेंसिल, इज इट ट्रू, नो, क्योंकि ये इसके साथ अटैच भी नहीं है और ये बिल्कुल सेपरेट है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। सम कैप्स आर पेंसिल, जब ये कनेक्टेड ही नहीं है तो इसका कोई भी पार्ट क्या पेंसिल नहीं है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ से नाइदर कंक्लूजन 1 और नाइदर 2 फॉलो। ये एग्जाम्पल था एक छोटा सा,